Namaskar, Sastyakar, Vanakkam, and very warm welcome to one and all, and welcome back to our channel that is A Square Classes. Today we are moving on towards the very next session of genetics and the beautiful chapter of your NCERT, that is Principle of Inheritance and Variation. Till yet we have seen what is intra-allelic, intergenic interaction, then in different types of non-allelic interactions, and we are moving on towards which session? We are moving on towards the नॉन-एलिलिक इंटरेक्शन. बेटा जी वो चार्ट याद करिए जिसको मैंने लिख के बताया था आप लोगों को कि कौन सा इंटरजेनिक इंटरेक्शन होगा और कौन सा इंटरजेनिक इंटरेक्शन होगा. क्लियर? सो फॉर एज नाउ वी आर done and dusted with those things. Today we are moving on towards the very next session of your genetics, and we are going to see a very beautiful concept that is called as epistasis. And let me tell you beta ji, this epistasis is interaction between the gene which is present on two different loci, present on two separate loci in which one gene suppresses the action of other gene. What do I mean that? Have a look of it. If suppose I am talking about non-allelic interaction right now. Okay, accepted. Chalo. Non-allelic matlab two genes interaction. And such two genes interactions are called as what? They are called as intergenic interaction. क्योंकि दो जीन के बीच की interaction की बात हो रही है. आप लोग कहोगे yes ma'am, accepted. Very good. Let's move on. Two genes, intergenic interaction. So let's talk what is this epistasis is now yet up to, and what the definition of actually epistasis says that. It says that two gene present on separate loci. Let me consider R as one gene and Y as one gene. Clear? If these two are one gene, and we are going to see these two are what? Present on separate loci beta ji. Two separate loci. Two separate loci पे ये जीन present है, और present होने के बाद इनका क्या interaction होगा, इनका क्या interaction होने वाला है, आज हम लोग ये देखने वाले हैं. Clear? So what this concept of epistasis says that one gene suppresses the action of other. अगर suppose R is responsible for one character, any character बच्चा, any character बेटा जी, one character, and Y is responsible for another character. What does this Y do? It suppresses the character. Y suppresses beta ji. Y suppresses the character of Y suppresses the character of R gene, and that process is called as epistasis. This is what the beautiful definition says, that epistasis is interaction between genes present on two separate loci. Two separate loci, what do I mean? Again draw कर लो दो लोगों के बीच की बात कर ले. टीना और मीना ले लेते हैं बेटा, आप लोग कहते हो इसलिए. चलो, ये हमारे टीना का क्रोमोसोम है और ये मीना का क्रोमोसोम है. समझना बेटा, ठीक है? आर एक हमारा एक जीन था. क्लियर? ओके, आर एक हमारा जीन था. आर जीन यहां पे प्रेजेंट है टीना के केस में, एंड वाई जीन मीना के केस में यहां प्रेजेंट है. सिमिलरली आर अगर इसमें प्रेजेंट है तो यहां कहीं प्रेजेंट है. कैन यू सी दिस सेपरेट लोकाई? कैसे बोलोगे? अरे बच्चा मुझे पता है आप लोग भूल जाते हो, मेरे बच्चे हो. सेम मिस्टेक अगेन. कोई ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? इतना. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? इतना. इसकी लोकस अलग अलग है. ये बेटा आर है, ये सेम जीन है, ये एलील एक है. ठीक है, मैं एक जीन की बात कर रही हूँ, समझना बेटा. सिमिलरली वाई के केस में एक लोकस आप एंड पॉइंट पे जाओगे तो आपको अलग अलग दिखेगा. एग्जैक्टली दिख रहा है. अगेन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अलग है, तो आर का डिस्टेंस इतना है, वाई का डिस्टेंस इतना है. ये दोनों सेपरेट लोकस पे प्रेजेंट है. याद करो वो क्लास जो मैंने आपको समझाई है, जीन्स प्रेजेंट ऑन दी सेम लोकस. तो ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट? ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट सेज दैट दीज आर द इंटरैक्शंस ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन दी
two separate loci in which one gene suppresses the और मास्क बेटा ये मास्क वाला जो वर्ड है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. वन जीन सप्रेसेस और मास्क द एक्शन ऑफ अदर जीन such type is called as what? Epistasis. That process is called as epistasis. You know what? इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है. आप लोग को आप कहोगे मैम आप बहुत कॉन्सेप्ट लाते हो. कोई ना बेटा पढ़ लो. अगर RR एक जीन है, ठीक है, वन कैरेक्टर के लिए, YY ये जीन है, तो देखना बेटा Y ने ये R का कैरेक्टर सप्रेस किया ना, Y ने R का कैरेक्टर सप्रेस किया, तो इसी जीन को हम लोग एपिस्टैटिक जीन भी बोलते हैं. एपिस्टैटिक. क्यों एपिस्टैटिक? क्योंकि Y ने R का जो कैरेक्टर है वो सप्रेस कर दिया. और इसी एपिस्टैटिक को भी क्या बोलते हैं बेटा जी? इनहिबिटिंग जीन. इनहिबिटिंग जीन. सो अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट आर इनहिबिटरी जीन्स देन, व्हाट आर इनहिबिटरी जीन्स देन, क्या बोलोगे आप लोग? क्या ही बोलना, क्या बोलोगे? यही बोलोगे मैम एपिस्टैटिक जीन्स आर व्हाट? इनहिबिटिंग जीन्स. व्हाट आर एपिस्टैटिक जीन्स? अ जीन, ऐसा जीन जिसने दूसरे वाले जीन का एक्सप्रेशन मास्क कर दिया, उसी को हमने क्या कहा? एपिस्टैटिक जीन. क्लियर? तो आपको मेरे से, चलो पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ बेटा. द जीन दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर जीन इज नोन एज इनहिबिटिंग जीन. लिख लेना बेटा, ये पॉइंट आपके लिए है. एंड और एपिस्टैटिक जीन. दिख गया आपको ये कॉन्सेप्ट? Y ने R का जो कैरेक्टर था उसको मास्क कर दिया, उसका जो एक्सप्रेशन था उसको मास्क कर दिया. दैट इज वाई R इज व्हाट? इनहिबिटिंग जीन और एपिस्टैटिक जीन. समझ में आया? एंड द वन विच इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ द कैरेक्टर इज नोन एज हाइपोस्टैटिक. तो यहाँ पे जो R जो जीन है बेटा, उसका कैरेक्टर सप्रेस हो गया, उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाया ना, तो उसी को हम लोग कौन सा जीन कहते हैं? हाइपोस्टैटिक जीन. क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? This is what the statement says about epistatic gene. Epistatic gene is the interaction when genes are present on the separate loci. इसमें क्या होता है कि one gene suppresses the action of other gene. Third point ये है, the gene which suppresses the action of other gene is called as beta G. What? It is called as epistatic gene. और जो जीन सप्रेस हुई है उसी को बेटा जी हम लोग हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं. एज वेरी गुड एग्जांपल इज टू जीन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है ये, एक्सेप्टेड. टू जीन्स के बीच का इंटरेक्शन है, आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड. इंटरजेनिक इंटरेक्शन है ये, दैट आल्सो ग्रेसफुली एक्सेप्टेड. दिस टू जीन्स वर देयर, Y was separating for another character and R was separating for one character. Y ने R का कैरेक्टर सप्रेस कर दिया, सो इस प्रोसेस को सप्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ R gene and that process is called as epistasis. ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना सप्रेशन का, इसको एपिस्टासिस कहते हैं. और द जीन विच सप्रेसेस उसको हम लोग एपिस्टैटिक या फिर इनहिबिटिंग जीन कहते हैं. क्लियर? और जिस जीन R का कैरेक्टर सप्रेस हुआ, किसने सप्रेस किया? Y ने. तो R का जो कैरेक्टर आने वाला था वो नहीं आ पाया ना, तो दैट इज कॉल्ड एज बेटा जी हाइपोस्टैटिक जीन. क्लियर? फिर आपको मेरे से एक सवाल पूछना चाहिए मैम बेटा कि मैम आप मुझे एक बात बताओ, आप, चलो ठीक है हमें तो समझ में आ गया कि व्हाट इज एपिस्टासिस. एक जीन जो दूसरे जीन इंटरेक्शन को सप्रेस कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एपिस्टैटिस. हाँ मैम एक्सेप्टेड. बट यहाँ पे तो आपने डोमिनेंट वाला दिखाया है, क्या ये डोमिनेंट वाला ही हमेशा करता है या रेसेसिव वाला भी करता है? या मैम कैसे होगा ये, मतलब कैसा जीन होगा? ईदर इट विल बी अ डोमिनेंट जीन, ईदर इट विल बी अ रेसेसिव जीन. देन आई विल से बेटा इट विल बी बोथ. क्या होगा बेटा जी? वो दोनों होगा. इट विल बी both recessive epistasis and dominant epistasis. So epistasis, when it is, epistasis is basically of two types, that is dominant epistasis and recessive epistasis. Dominant epistasis वैसा epistasis है जिसको dominant जीन ने दूसरे वाले का एक्शन सप्रेस किया. एंड रेसेसिव एपिस्टासिस वैसा जीन है, रेसेसिव होमोजाइगस होने के बाद भी उस जीन ने डोमिनेंट वाले का एक्शन सप्रेस किया. क्लियर? समझ में आया? चलो बढ़े आगे. ओके फाइन. लेट सी टाइप्स ऑफ एपिस्टासिस. मिटा दो इसको, आप लोग कहोगे यस मैम. चलो
This epistasis is of basically two types. क्या ये 2 ही टाइप का है? नहीं बेटा, मैं आपको 3 टाइप के पढ़ाऊंगी, ठीक है? समझना. Dominant epistasis. What is this dominant epistasis? What is this recessive epistasis? And what is this dominant recessive epistasis? When gene is dominant, लिख लेना बेटा, and it suppresses the action of, when gene is dominant and it suppresses the action of other gene, then that kind of epistasis is called as, then such type of epistasis is called as what? Dominant epistasis. Dominant epistasis. When gene is in recessive state, when, लिखना बेटा, when gene is in recessive state and being on recessive, it's a, नहीं बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, बैठना है क्या? नीचे बैठो, मैं आ रही हूँ रिकॉर्ड करके, ठीक है? When gene is in recessive state, being on recessive state, it suppresses the action of other gene. Such type of epistasis is called as recessive epistasis. Clear? समझ में आया? So epistasis is basically of 3 types. जब बेटा जी dominant gene suppress करता है, लिख लेना, dominant gene suppresses the action of the other gene, such type of epistasis is called as dominant epistasis. And when recessive gene is in a recessive state, what do you mean by recessive state? बेटा जी homozygous recessive. लिख लेना बेटा जी, स्टार पॉइंट करके लिख लो. जब ये homozygous recessive होंगे, being on recessive state, it suppresses the action of other gene. Such type of epistasis is called as what? Recessive epistasis. क्लियर? क्या बोलते हैं सच टाइप ऑफ एपिस्टासिस को बेटा जी? रेसेसिव एपिस्टासिस. आप लोग बोलोगे ठीक है मैम, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये डोमिनेंट तो बेटा कभी भी डोमिनेंट ही होगा. क्लियर? समझ में आया? सो रेसेसिव ये वाला. फिर आप लोग बोलोगे मैम ये भी समझ में तो आ गया, बट व्हाट अबाउट डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टासिस? ये क्या नया पंगा है? मैं बताती हूँ बेटा व्हाट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टासिस. सो डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टासिस का क्या कहता है कि डोमिनेंट एलील एट वन लोकस पे प्रेजेंट है एंड रेसेसिव एलील की बात हो रही है एक जीन की. एक जीन का ही, 2 जीन के एक एलील की बात कर रही हूं मैं. अगर ए एक जीन है तो उसका एलील एक यही कुछ हो सकता है. बी एक जीन है तो उसका ये कुछ इस तरह से हो सकता है. तो बेटा जी आई एम टॉकिंग अबाउट दैट केस, recessive allele at another loci. What do you mean by recessive allele at another loci? समझना, अगर ये एक क्रोमोसोम है हमारा, उस पे अगर ए बेटा जी यहाँ प्रेजेंट है तो ए एक एलील हो गया. तो ये तो डोमिनेंट जीन, ए डोमिनेंट जीन का एलील हुआ ना, तो इसका जो रेसेसिव होगा वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा. समझ में है? तो अब इसकी लोकेशन चेक कर ले. आप लोग कहोगे यस मैम, चेक कर लेना. देखना ए कहां से, ये ए का लोकेशन यहां से यहां तक है,
और छोटे वाले रेसेसिव ए का यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या ये अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट है? आप लोग कहोगे यस मैम, इसका लोकेशन यहाँ तक है, इसका इतना है, तो इसकी लोकेशन अलग अलग है ना. सो दिस इज व्हाट गिव राइज टू सेम इफेक्ट. या तो ये कॉम्बिनेशन हो, या ये कॉम्बिनेशन हो, या ये कॉम्बिनेशन. क्या कहता है कि जो इफेक्ट ये दिखाएगा वही इफेक्ट ये भी दिखाएगा. तो दोनों एक साथ देते हैं और दोनों ही मतलब एक दूसरे की एक्टिविटी को मास्क कर देते हैं. समझ में आया? सो सच टाइप ऑफ एपिस्टेसिस इज कॉल्ड एज डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस. इसमें एक जीन का डोमिनेंट होने के बावजूद वो दूसरा वाला उसका रेसेसिव स्टेट भी प्रेजेंट था, और दोनों मिलके ही एक अलग एक दूसरे की एक्टिविटी मास्क करने के बाद वी गेट एन अनदर जीनोटाइप कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस द सेकंड फिनोटाइप. यानी जो दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा जी, जो दूसरा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो तो देगा दूसरा फिनोटाइप, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन है जिसमें डोमिनेंट और रेसेसिव जीन एक साथ प्रेजेंट है, वो एक दूसरे की एक्टिविटी मास्क करके एक ही कैरेक्टर दिखाते या एक ही एक्सप्रेशन दिखाते. सच टाइप ऑफ epistasis is called as dominant recessive epistasis. समझ में आया? And this is what dominant allele एक one locus पे present है A, recessive allele at another loci. चलो मैंने A लिया है बेटा जी, as per note आप लोग B भी लिख लो, लिख लिया. अनदर लोकाई है, राइज टू सेम इफेक्ट. इधर ये होने के बावजूद ये दोनों सेम इफेक्ट दिखाएंगे. वो दोनों किधर भी प्रेजेंट हो, जो डोमिनेंट वाला दिखाएगा वही रेसेसिव वाला दिखाएगा, जो रेसेसिव वाला दिखाएगा वही डोमिनेंट वाला दिखाएगा. एंड दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टासिस. एंड अनदर जीन प्रोड्यूसेस द सेकंड, मतलब जो दूसरे जीन का कॉम्बिनेशन होगा वो दूसरा फिनोटाइप देगा. तो क्लियर हुआ बेटा जी? डोमिनेंट एपिस्टासिस, रेसेसिव एपिस्टासिस एंड डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टासिस. हेडिंग डालिए फ्रेश में बेटा जी, डोमिनेंट एपिस्टासिस. Let's see what is the concept of dominant epistasis. चलो. So, what is this dominant epistasis? Again, the same history repeats. In dominant epistasis, out of two pairs of allele, the dominant allele of one gene suppresses or masks the activity of another non-allelic pair. दो एलील के बीच का दूसरे एलील का इंटरेक्शन वो मास्क कर देता है, और वो भी किस स्टेज में बेटा? डोमिनेंट स्टेज में. उसी को हम लोग डोमिनेंट एपिस्टासिस कहते हैं. एंड उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज कुकुरबिटा पेपो. कुकुरबिटा पेपो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द प्लांट. व्हाट हैपेंस? पेरेंट वी टेक, अगर हम लोग कुकुरबिटा पेपो का पेरेंट लेते हैं तो देखना, white color flower got crossed with green color flower. So what do you expect to be the F1 generation? जल्दी जल्दी बताओ आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए. मेरा तो बेटा जी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो F1 जनरेशन आया वो भी white आया. And that's what I was shocked how it could happen. Parent F1 gametes बना लें अब F1 के, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे क्या करना है बेटा जी? डाइहाइब्रिड क्रॉस करना है. आप लोग कहोगे यस मैम, तो देखो बन गई ये गैमेट्स. यही 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे. यस मैम, एक्सेप्टेड. चलो डाइहाइब्रिड का क्रॉस बनवा ले. आप लोग कहोगे जी मैम बना लीजिए. लेट्स सी बेटा, फटाफट क्रॉस करवा के रेशो बताओ, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या है इसकी स्टोरी. चलो ये तो हो गया हमारे 4 टाइप ऑफ गैमेट्स. एंड लेट्स सी द क्रॉस बिटवीन देम. पहले तो हम लोग इसको पूरा फिल कर लेते हैं, फिर देखते हैं. आफ्टर डूइंग दिस डाइहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट डिड आई नोटिस्ड? आई नोटिस्ड देयर कम्स 12 फ्लावर. बेटा जी ये डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो आई नोटिस्ड आई गॉट 12 फ्लावर एज व्हाइट, 3 फ्लावर एज येलो एंड 1 फ्लावर एज ग्रीन. आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम वो कौन कौन से फ्लावर हैं जो व्हाइट होंगे, कुछ येलो होंगे और कुछ ग्रीन होंगे, ये कैसे पता चलेगा? कैन यू कंपेयर F1 जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन? तो आपको पेरेंटल जनरेशन में ये वाले तो जो हैं बेटा जी एग्जैक्टली वैसे होंगे, तो ये कैसे होंगे? ग्रीन. तो मैंने जो रेड कलर से मार्किंग की है बेटा वो ग्रीन होंगे. एक्सेप्ट करो ये चीज. फिर मैंने क्या किया बच्चा? फिर मैंने F1 जनरेशन बनाया. बना लिया F1 जनरेशन? आप लोग कहोगे यस मैम बना लिया. अब देखना F1 बनने के बाद
F1 बनने के बाद बेटा जी F1 में अगर ये दोनों जीन जो डोमिनेंट थे तो उसने क्या कैरेक्टर दिया, व्हाइट कैरेक्टर दिया। तो इन दोनों जीन को डोमिनेंटली ढूंढ ले। आप लोग कहोगे क्या ये दोनों जीन डोमिनेंट है, ओ व्हाइट व्हाइट व्हाइट, इसमें डोमिनेंट है क्या, नहीं, इसमें सिर्फ W डोमिनेंट है। तो फिर वो कैसा हो जाएगा बेटा, रुक जाओ पहले अकॉर्डिंग टू F1 चलते हैं, ठीक है। चलो अगर ये हमारे व्हाइट है जिसमें दोनों डोमिनेंट है तो फिर समझ में आता है, हाँ मैम F1 में भी ऐसा आया था, दोनों डोमिनेंट थे तो क्या मिला हमको, व्हाइट मिला। बट क्या हुआ बेटा जी, यू नो दिस फ्लावर जहां पे एक W था वो भी appear to be white, जो एक ही W था वो भी appear to be white। एंड वैसे फ्लावर में जहां पे W कैपिटल में नहीं था वो फ्लावर appear to be yellow। कैन यू सी दैट। तो ये तीनों फ्लावर जहां पे W कैपिटल में नहीं था इट appeared to be as yellow। सो जो बेटा जी जो ब्लू वाले मार्किंग से है वो येलो फ्लावर्स हैं, जो ग्रीन वाले मार्किंग से हैं बेटा वो व्हाइट फ्लावर्स हैं, एंड बच्चा जो रेड वाले मार्किंग से हैं वो ग्रीन फ्लावर है। फिर आपको सवाल आएगा मैम इसमें एपिस्टेसिस वाला क्या कन्वर्जन हुआ। बेटा वाई जीन जब डोमिनेंट स्टेज में था, वाई जीन जब डोमिनेंट स्टेज में था तो वो येलो कलर दे रहा था, लेकिन W के प्रेजेंस में वो व्हाइट हो गया। तो ये W ने क्या किया, वाई जीन के कैरेक्टर को सप्रेस किया। समझ में आया बेटा, W और Y जब साथ में थे तो ये व्हाइट कलर मिल रहा था, लेकिन जब W एब्सेंट हो गया, W जीन एब्सेंट था तो Y ने अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस किया। इसका मतलब क्या हुआ कि W ने Y के कैरेक्टर को सप्रेस किया था, और जब जब W डोमिनेंट के फॉर्म में था तब तब Y का कैरेक्टर सप्रेस हुआ। एंड दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट व्हाट F1 जनरेशन। क्या WWYY, कैन यू सी, W भी कैपिटल में Y भी कैपिटल में, तो इन दोनों का एक्शन इसने क्या किया बच्चा, सप्रेस किया। एंड दिस इज व्हाट इट सेज। सो हुज कैरेक्टर इज सप्रेस्ड, Y का कैरेक्टर सप्रेस हुआ, लेकिन वहीं पे आप देखोगे जब W डोमिनेंट नहीं है और Y डोमिनेंट में है या Y कैपिटल में है तो आप लोग देखोगे वो कलर कैसा हुआ, येलो कलर हुआ। एंड दिस इज व्हाट इट सेज दैट W is epistatic gene और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहिबिटिंग जीन। समझ में आया, W is epistatic gene या फिर इनहिबिटिंग जीन। एंड ये Y का कैरेक्टर सप्रेस हुआ है ना बच्चा, तो ये Y क्या है, दिस Y is hypostatic। क्लियर, क्योंकि in the absence of W, Y gives the color of yellow, एंड तो नॉर्मल तो पेरेंटल जो ऑब्वियसली पूरे रेसेसिव के फॉर्म में वो तो हमने देख ही लिया। सो इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, इन द एब्सेंस ऑफ द कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, इन द एब्सेंस ऑफ W एपिस्टैटिक जीन के एब्सेंस में Y अपना कैरेक्टर दिखा रहा था, बट जैसे Y अपना कैरेक्टर दिखा नहीं पा रहा था, बट जैसे W गया Y ने अपना कैरेक्टर दिखाया। तो एक जीन के प्रेजेंस से दूसरे जीन ने अपनी एक्टिविटी क्या की बेटा, रोक दी। इसीलिए हमको 12 व्हाइट फ्लावर मिले, 3 येलो फ्लावर मिले और 1 ग्रीन। एंड दिस इज व्हाट द एक्सपेरिमेंटल रेशियो ऑफ द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द डोमिनेंट एपिस्टासिस व्हिच कम्स एज 12:3:1। 12:3:1। समझ में आया बेटा, दिस इज व्हाट डोमिनेंट एपिस्टासिस का कॉन्सेप्ट इज। एंड आप लोग अगर पूछोगे तो W इज एपिस्टैटिक जीन, क्योंकि W के प्रेजेंस में Y अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहा था, एंड Y इज हाइपोस्टैटिक जीन। लिख लेना बेटा, वरना भूल जाओगे फिर बाद में, ठीक है। एंड Y इज व्हाट, हाइपोस्टैटिक जीन। क्लियर, दैट्स ऑल। Now given very first topic and very next topic about okay, before going on to the very next session, I know we are very eager to study recessive epistasis, but I want to give you a very important example of dominant epistasis also. What is the another example of dominant epistasis? And I want to make a dihybrid cross and do it as a homework given by NR ma'am. Take it, coat color in dog, कोट कलर इन डॉग को करवा के देख लेना बच्चा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेम चीज इसी का डिस्कशन करेंगे।
कोट कलर इन डॉग, कोट कलर इन डॉग। और जो 3 कलर थे, 3 कलर आते हैं डॉग के 12:3:1 के रेशो में, वो होता है ब्लैक, फिर होता है ब्राउन, फिर होता है व्हाइट। समझ में आया? सो आपको इसको क्रॉस करवाइए, डायहाइब्रिड क्रॉस गैमेट बनाइए। अगर जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, अगर मैं आपको हेल्प कर दूं तो आप लोग कुछ इस तरह से ले लेना, ठीक है? गॉट क्रॉस्ड विथ, क्लियर? इसका क्रॉस करवाइए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग का, एंड देन सी व्हाट हैपेंस। क्लियर? सो लेट्स सी, अगले क्लास में मैं सेम एग्जांपल से डिस्कस करूंगी जो मैंने लिखवाए हैं आपको। कोट कलर इन डॉग, 3 कोट कलर आते हैं आपको, ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट। सेम एग्जांपल का डायहाइब्रिड क्रॉस मैं आपको करके दिखाऊंगी और मैं आपको शो करूंगी कि हाउ इट एक्चुअली हैपेंस। यहां तक तो एपिस्टैटिक क्लियर है ना, डोमिनेंट एपिस्टैसिस। और नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे बेटा रेसेसिव एपिस्टैसिस से। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में रेसेसिव एपिस्टैसिस से आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। Do watch the session completely. I have planned you a very short and very beautiful, no extra time pass for genetics. मैं चाहती हूँ कि आप लोग 15 मिनट का वीडियो, अगर आप लोग कहीं घूम भी रहे हैं तो भी देखें, एंड हार्डली आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आवर सेशन ऑन द चैनल फॉर जेनेटिक्स इज गोइंग ऑन, कि हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, एंड देन दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव। वाई? कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, फटाक से, अगर आपको मल्टीपल एलील्स में डाउट है, फटाक से मल्टीपल एलील वाला कॉन्सेप्ट खोला एंड देख लिया। नो नीड टू स्टडी एक्स्ट्रा थिंग्स। दिस इज व्हाट genetics is, and this is the way you study, easy way and sorted way, and that's what is provided to our channel. So please do share, please do like, please do subscribe. Thank you very much, and have a good day.